الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ اور نوجوان دوستو، اسلام میں روزہ تیسرا فرض ہے. اگر کوئی شخص روزہ کے فرض ہونے کا انکار کر دیتا ہے تو پھر ایسا شخص مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اس روزے کے فرض ہونے کا انکار تو نہیں کرتا لیکن وہ جان بوجھ کر کے روزے نہیں رکھتا، تو ایسا شخص سخت گناہگار اور فاسق ہے. اس لیے ہمیں روزہ کے فرض ہونے کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے اور جان بوجھ کے روزے بھی نہیں چھوڑنے چاہیے. یہ فرض ہے، اس کا بجا لانا اور اسے رکھنا ضروری ہے. یہاں پہ ایک شبہ کا ازالہ کر دیا جائے پہلے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنی ضروری ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. نیت کہتے ہیں دل کے قصد اور ارادے کو. دل میں ارادہ ہے، یہی نیت ہے، اور یہ کافی ہے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روزے کی نیت رات میں کرنا بہتر ہے. اگر کوئی شخص رات میں نیت نہ کی تو زوال سے 1.5 گھنٹے پہلے تک اگر وہ نیت کر لیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت تک اس نے کچھ نہ کھایا ہو اور نہ پیا ہو اور نہ روزے کو توڑنے والی کوئی چیز کی ہو، تو پھر ایسے شخص کا روزہ ہو جائے گا. اب آئیے ان چیزوں کو جانتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جن سے نہیں ٹوٹتا، اور ان چیزوں کو جن سے مکروہ ہو جاتا ہے. پھر جانیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. پہلے ان چیزوں کو جانتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1، روزے کی حالت میں ناک یا کان میں دوا وغیرہ ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 2، جان بوجھ کر کے منہ بھر کے قے کرنا یعنی الٹی کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 3، عورت کو چھونے سے یا ایسی کوئی بات کرنے سے جس سے مرد کا پانی نکل آئے، تو ایسے شخص کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کی حالت میں ان سب چیزوں سے بچنی چاہیے. نمبر 4، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا، روزہ یاد ہے لیکن کلی ہم نے کی، پانی حلق سے نیچے اتر گیا، اس شخص کا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ باقی نہیں رہا. نمبر 5، جو چیزیں عام طور سے کھائی نہیں جاتی، مثلا لکڑی ہے، مٹی ہے، کاغذ ہے وغیرہ، تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے منہ میں رکھ کے چبانا. تو اگر کوئی شخص ایسی چیزوں کو کھا لیتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 6، اگربتی کا یا کسی اور چیز کا بھاپ اور دھواں لینا اپنے اندر، ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے دھواں کو اندر لینا. اسی طریقے سے سگریٹ یا بیڑی وغیرہ پینا یا حقہ پینا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے ہمیں روزے کی حالت میں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. نمبر 7، کوئی ایسا شخص ہے جس نے سحری کری اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سحری کے وقت میں ہم نے سحری کی ہے، لیکن بعد میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نے جو سحری کھائی تھی وہ ایسا وقت تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، وہ ختم ہونے کے بعد اس نے سحری کھائی تھی، تو ایسے شخص کا روزہ
नहीं होगा, वो उस रोज़े की क़ज़ा करेगा। इसी तरीके से इफ्तार का वक्त कोई शख्स समझ करके इफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में उसे पता चला कि अभी तो इफ्तार का टाइम ही नहीं हुआ था, वक्त नहीं हुआ था, बगैर वक्त के ही उसने इफ्तार कर लिया, तो रोज़ा उसका नहीं होगा, रोज़ा उसका टूट जाएगा। अगर किसी शख्स को ज़बरदस्ती रोज़ा तोड़वाया गया धमकी दे करके, या गोली मारने की धमकी दे करके, या किसी और वजह से ज़बरदस्ती रोज़ा तोड़वा दिया गया, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा नहीं होगा। कोई ऐसा शख्स है जो मुंह में पान दबा करके सो गया और सुबह हो गई, तो उसका रोज़ा नहीं होगा, इसलिए कि हो सकता है कि वो पान का जो थूक है वो पेट के अंदर चला गया हो खुद ब खुद, जिसकी वजह से रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा उसका नहीं होगा। अब अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके नाक से खून निकला और वो हलक के ज़रिए से पेट में उतर गया, तो अब रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से किसी शख्स के मुंह में थूक आ गया, मुंह में खून आ गया, तो देखा यह जाएगा कि खून मुंह में थूक के बराबर है या कम है या ज़्यादा है। अगर खून बराबर है या ज़्यादा है, फिर वो अंदर चला गया है, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अब अगर कोई ऐसा शख्स है जो सोता है और सोने की हालत में उसे एहतलाम हो जाता है, तो एहतलाम होने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता है, वो गुस्ल करेगा। लेकिन एहतलाम होने के बाद वो ये समझता है कि रोज़ा टूट गया है, फिर खा पी लेता है, तो अब यकीनन उसका रोज़ा टूट जाएगा। एक और मसला इसमें नया ये है कि कभी रोज़े की हालत में ऐसा होता है कि लेडीज़ जो होती हैं उनको मसलन पेट में हमल है, उनको चेक करवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्टरनी जो होती है वो अपना हाथ डाल करके चेक करती हैं। तो इसमें दो सूरतें हैं, वो हाथ जो डाल करके चेक करेगी तो हाथ पे दवा वगैरह लगा करके अंदर हाथ दाखिल करेगी, तो इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। और अगर ऐसे ही कुछ लगाए बगैर हाथ डालती है तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से किसी औरत ने सिहर खा करके रोज़ा रख लिया, लेकिन दिन के किसी भी हिस्से में उसको एमसी और माहवारी का खून आना शुरू हो गया, तो फिर ऐसी औरत का रोज़ा टूट जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता है। आइए अब जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है और उसकी वजह से क़ज़ा भी लाजिम होता है और कफ़ारा भी लाजिम हो जाता है। तो अगर कोई शख्स रमज़ान में जानबूझकर खा लेता है या पी लेता है या फिर बीवी के साथ हमबिस्तरी कर लेता है, जमा कर लेता है, तो ऐसे शख्स का रोज़ा टूट जाएगा और उसके ज़िम्मे क़ज़ा भी होगी और कफ़ारा भी उसको अदा करना होगा। अब ये कफ़ारा होता क्या है? कफ़ारा कहते किसे हैं? कफ़ारा ये है रोज़े का कफ़ारा कि अगर मुमकिन हो तो ग़ुलाम या बांदी आज़ाद करेगा वो, लेकिन आप जानते हैं कि इस दौर में ग़ुलाम और बांदी नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। तो दूसरी सूरत यह है कि वो 2 महीने लगातार रोज़े रखेगा, इस तरीके से कि बीच में एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन भी नागा हो गया तो फिर 80 रनौ फिर से रोज़े रखने पड़ेंगे उसको 2 महीने तक। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको लगातार 2 महीने रोज़े रखने की ताकत नहीं है, तो फिर वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। फिर वो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त पेट भर करके खाना खिलाएगा। लेकिन इस खाना खिलाने में
तसलसल ज़रूरी नहीं है। अगर कोई शख्स एक ही मिस्कीन को 60 दिन खिला दे तो भी कफ़ारा अदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ रुक करके एक मसला, ये जो अल्लाह ने कहा है कि 60 दिन मुसलसल रोज़े रखने हैं, ये मर्द हजरात के लिए है, उन औरतों के लिए नहीं है जिनको माहवारी आती है। जाहिर सी बात है कि जिनको महीने का खून आता है वो 60 दिन लगातार कैसे रोज़ा रख सकती हैं। तो फिर उनका जितना दिन खून आएगा उतने दिन माफ़ रहेंगे। जैसे ही खून ख़त्म होगा वैसे ही फिर से रोज़े रखने पड़ेंगे, देरी न करेंगी वो। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे क़ज़ा भी लाजिम होती है और कफ़ारा भी देना। आइए अब जानते हैं उन चीज़ों को जिनसे रोज़ा तो नहीं टूटता लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 1, बगैर ज़रूरत किसी चीज़ को मुंह में लेके चबाना। इसी तरह औरतों का खाना बनाते समय नमक टेस्ट करना। इससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा लेकिन रोज़ा मकरूह हो जाएगा, बशर्ते कि टेस्ट करने के बाद फिर वो उसे थूक दे, अंदर ना ले। अंदर ले तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 2, पूरे दिन नापाकी की हालत में गुजार दिया उसने, तो ऐसे शख्स का रोज़ा मकरूह होगा। रोज़ा टूटेगा तो नहीं लेकिन मकरूह हो जाएगा। नंबर 3, किसी को खून देना, इतना देना कि खुद कमज़ोर हो जाए, तो ऐसा करना मकरूह है। इसी तरह रोज़े की हालत में ग़ीबत करना, चुगली करना, इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना, ये तमाम चीज़ें हराम हैं। लेकिन रोज़े की हालत में ये करना तो हराम है लेकिन रोज़ा इसकी वजह से टूटेगा नहीं, मकरूह हो जाएगा। हाँ, इसी तरह लड़ाई करना, झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ये सब चीज़ें रोज़े की हालत में रोज़े को मकरूह बना देती है। तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनके करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। अब वो चीज़ें जिनसे रोज़ा न टूटता है न रोज़ा मकरूह होता है, वो कौन सी चीज़ें हैं? नंबर 1, मिसवाक करना सुन्नत है, ये और करना चाहिए, इससे रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 2, तेल लगाना सर में, दाढ़ी में, मूछ में तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता और नहीं रोज़ा मकरूह होता है। नंबर 3, आँखों में सुरमा लगाना या आँखों में दवा डालना, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 4, खुशबू लगाना या खुशबू सूंघना। नंबर 5, गर्मी और प्यास की वजह से नहाना, गुस्ल करना। नंबर 6, इंजेक्शन लगवाना या टीका लगवाना। इंजेक्शन लगवाने में यह ध्यान रहे कि ऐसा इंजेक्शन न हो जिसकी दवा पेट तक या दिमाग तक बराह रास्त पहुंच सके। अगर बराह रास्त पेट में दवा पहुंच जाती है या दिमाग तक पहुंच जाती है तो फिर इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 7, भूल कर खा लेना या पी लेना, रोज़ा इससे नहीं टूटता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि मन नसिया वहुव साइमुन फ़अकल औ शरिब फलियुतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतमहुल्लाहु व सक़ाह। जो शख्स रोज़े की हालत में भूल करके खा पी लिया तो वो अपने रोज़ा को बाद में पूरा करेगा। बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला ने उसे ये खिलाया है और पिलाया है, लेकिन याद रहे कि जिस वक्त याद आ जाए कि उसका रोज़ा है, खाना पीना छोड़ देना चाहिए था उसको। अगर उसने याद आने के बाद भी खाता है तो फिर उसका रोज़ा टूट जाता है। इसलिए भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 8, हलक में बगैर इरादे के पानी का चला जाना, बिला इरादे के पानी का चला जाना। नंबर 10, खुद ब खुद तय हो जाना यानी खुद ब खुद उल्टी होना। नंबर 11, सोने की हालत में एहतलाम का हो जाना।
नंबर 12, दांतों में से खून निकले मगर हलक में न जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 13, अगर ख्वाब में या सोबत से गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई और उसने सुबह होने से पहले गुस्ल नहीं की और इसी तरह नियत करके रोज़ा रख लिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, उसे बाद में गुस्ल कर लेना चाहिए। दिन भर बगैर गुस्ल के इसी तरीके से मक्खी या मच्छर मुंह के अंदर दाखिल होकर पेट में चले गए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से पानी से कुल्ली करने के बाद पानी तो हमने फेंक दिया बाहर, मुंह जो तर और भीगा हुआ है और थूक फिर उसके बाद घोंट रहे हैं तो रोज़ा उससे नहीं टूटेगा। इसी तरीके से आंसू या पसीने का एक आध कतरा मुँह में चला या उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मुंह से जो राल टपकता है तो टपकने से पहले अगर कोई निगल जाता है उसे हलक के नीचे उतार देता है तो राल के हलक से नीचे उतरने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरीके से कान जो हम खोदते हैं, मैल निकालते हैं, रोज़ा कान खोदने और मैल निकालने से नहीं टूटेगा। नीम की मिसवाक या कोई और मिसवाक जो भीगी होती है उससे मिसवाक करते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है मिसवाक करने से। हाँ, मंजन वगैरह जो है और पेस्ट जो है उससे हमें मिसवाक नहीं करना है, उससे मुंह नहीं धोना है रोज़े की हालत में, वरना रोज़ा मकरूह हो जाएगा। ऐसे ही रोज़े की हालत में सुरमा लगाना है, अतर है, खुशबू है, ये सब लगाना, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह रास्ता जा रहा है आदमी तो गर्द गुबार उड़ता रहता है तो उसके उड़ने और हलक में चले जाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। ये चंद चीज़ें वो थीं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है।